and strengthening good governance in many public domains. Sir, I would request you to please address the session further. Hello everyone. Thanks Keshav for providing me this opportunity to interact with some of the brilliant minds which will be surely shaping the future of India. And it is really great that this 2030 Youth Force organized a session, and I believe that the good governance is an integral part of social development and nation development. So it is a very nice So, opportunity for Himanshu, yeah. you're not clear enough, brother. If you can Hello. maybe speak Uh, louder or okay. yeah. Am I audible now? Is it clear now? Yeah, much better. Yes. Okay. Yes. So it is a very nice opportunity to interact with you all on the topic of good governance, because this is I heard last few words from Keshav in which he was talking about making the government office eco-friendly, plastic free. So such kind of initiatives are very much required because government is the largest NGO functioning in the entire nation, and it works for the social development, actually for the people, for the marginalized communities, and it is doing the things for the greater good. So how can we bring, how as a youth, how can we participate into this good governance segment? This is my whole soul, you know passion. So by passion, I am very much enthusiastic that how youth can force, how youth can shape, how you can create the things which are essential for strengthening good governance. So this will be my session. So Keshav, shall I start my session by sharing the PPT? I think yes, you can go ahead. Himanshu, I think still some people are not Okay. able to hear you clearly. I think there is an issue with micro your mic. So if you can use a laptop audio or something like Okay, that, okay. give it a try. I'll try. Oh, is this better than the microphone? Yes, please. Now it's good. Fine. I'll use the laptop microphone instead of the external. Let me know, Kishu, when shall I start the session? I have the PPT with me. Let's start. Yes. तो जब तक दूसरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, may I have some introduction with the existing participants? I mean, where are you from? What are you currently doing? Good morning, sir. I'm Borsha from Kolkata. I am currently in class 12, studying commerce.
Hello, Varsha. Hi. Hi, am I audible now? Yeah. Yeah, thank God. Good morning, sir. So I'm Sanjeevni. I'm from Kolkata. I'm a student of class 12 as well. And yes, I am also a student of commerce, and I have done a few things regarding the SDGs. So Great. that's thank you, sir. Great. Hello, sir. I am Dhairya. I am from Varanasi and I am currently pursuing a degree in law. Great. That's great. Thank you, sir. Good morning, sir. This is Yash this side, and I'm also from Varanasi, and I'm a final year student at Banaras Hindu University with English as my main subject. Great. Great. So, hi Himanshu, Keshav this side. So yeah, uh, I'm from Delhi and how to say enthusiastic person, or, to something on ground and posting my master's work on Delhi School of Social Work. And yes, I can come up with different projects. So Great. that's all of me. Yeah. So it's good that you have the people from different parts of India, and it's better to have a better demographic, mixture of people, so that we can understand the nitty gritties of good governance. So yeah, that's good. Hello, Himanshu sir. I am Harleen. I am a professional counseling psychologist, and here I am to understand youth psychologies in different perspectives. Great. And yes, I am working for Youth Force India since 6 months, I guess, So 5 6 months. so nice, Harleen. Nice to meet you. Pleased to meet you too. I think some of our schoolmates are late today, maybe because it's a morning session. Not so morning, but yes. I guess we were having Usually, 12:30 session since 4 days. No, so everybody was in a routine of that, I guess. So though we have Arya, reminded them. maybe that. Arya just texted me. She'll be joining in 5 minutes. Okay. Great. So we'll be doing a short exercise on, creating a good governance template for the health sector. So I would request all of you to have one notebook and pen with you. Okay, at the end of the session, we'll do a small exercise. Now the task for you is to finalize one of these two and give a reasoning why. Like I said, find some reason which will give you a base and a foundation to. Arya was giving lecture too. So yeah.
So Himanshu, if you're waiting for someone, then we proceed. Sorry, I didn't hear you. Himanshu, we can proceed. Are you waiting for something? No, I'm not waiting for any. Yeah, we can proceed now. Okay, fine. I think we'll join Okay, in so our between. topic is good governance for social development. So in this particular session, we'll be learning that what is good governance, that how we can implement good governance, especially from youth-oriented perspective, that how youth can collaborate with the government and use their intellect and brilliance to, inherent or to introduce some of the very good ideas which are never been before in the governance. So, what is the path to create good governance infrastructure in the India or in the any nation? So, we'll be understanding about overall a general perspective about the good governance and how we can implement and how can we be a part of good governance. All right, I have already shared the session PPT with Keshav. Okay, so if any one of you required to, jot down some points, so it is already there. Okay, please mute your mics so that voice should not be echo. Okay, I'll start with the presentation. So what is good governance? So good governance जब भी हम सुनते हैं, so it's sort of a very cliche term कि good governance में क्या चीजें होती होंगी, कैसे होता होगा. So I'll introduce you to the good governance in a very simple and understandable manner. तो गवर्नेंस जो कि बोला जाता है कि गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस? बिफोर अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गवर्नेंस. So governance is the process of decision making, okay, and it is the process by which we decide that what we will try to do for the people of our nation or of our institution or for our organization. All right, कि हमारे पास let's say India है, if you are a bureaucrat or if you are a politician, so how you will define and decide that what will be good for your people, what will be good for your human resource. So it is a process of creating decisions for the people or for the institutions or for the organization. So how you can create decision for others, it is a part of governance. In a nutshell, we can understand that this is the governance, to decide something for the wider range of audience. All right, so governance कई type की हो सकती है. For example, governance may be corporate governance. If you are governing a corporate institution, it can be termed as corporate governance. It could be international governance like United Nations is doing. And third is national governance. So national governance is something which is Bharat Sarkar is doing, government of India is doing for us. Okay, so these are the different sort of governance जिसको हम डे टू डे लाइफ में हम जिनको देखते रहते हैं. So 1992 में एक रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस इन डेवलपमेंट नाम से. उन्होंने ये बोला था द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज, दिस डिफाइंस द गुड गवर्नेंस. सो फॉर एग्जांपल पावर तो आपके पास है, you have the power, this is governance, but how you use that particular power for the greater good, that is good governance. So Spider-Man का dialogue है ना, with great power comes great responsibility. So आपके पास power तो है, you are an elected member or you qualified an IAS examination, that is good, you will get the power to govern people, but how efficiently you govern the people, how efficiently you create the ecosystem in which people can grow, in which people can rise, so that comes under the good governance. So with great power comes great responsibility, and that great responsibility defines that how you will implement good governance. So I think, am I clear in this particular segment, that how efficiently you use your human resources, you use your power, that comes under the term of good governance. So good governance के characteristic क्या हो सकते हैं? If this is the definition of good governance, then what are the characteristic of good governance? So let's see the characteristic of good governance. How we will define that this particular governance is good or not?
सो गुड गवर्नेंस के कुछ हमारे पास 8 पर्सपेक्टिव्स हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। इन नॉर्मल गवर्नेंस देयर इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, बट इन गुड गवर्नेंस देयर इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, आपको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लोक सेवा एक अधिनियम है, ठीक है, लोक सेवा एक अधिनियम है जिसके अंडर में वील इंश्योर कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है, and if you have submitted the right documents, so in the 10 working days you will get a electricity connection, ठीक है। ये एक नॉर्म है, एक नॉर्म है जिसमें ये 10 डेज का जो हमने टाइमलाइन डिसाइड किया है, ये अकाउंटेबिलिटी दिखाते हुए हमने डिसाइड किया है कि विद इन द 10 डेज यू विल गेट अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यू विल गेट अ न्यू मीटर कनेक्शन। अगर उन 10 डेज में आपको मीटर कनेक्शन नहीं बनता, दैट मीन्स देयर इज समवन हु शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ देयर ड्यूटी। सो इफ देयर इज नो वन जिसको हम अकाउंटेबल ठहरा सकें, तो दिस गवर्नेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल सड़क पे आप चल रहे हैं, यू विल फाइंड अ पॉट होल, तो आप उसके लिए किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे? इज देयर अ पर्सन और अथॉरिटी जिसको हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं for correcting this particular pothole? Then that particular, if a citizen knows that कि इस particular काम करने के लिए ये particular बंदा accountable है या ये particular संस्था accountable है, then that particular governance is good governance, otherwise it is not. Second thing is transparent. हम किसी भी काम के लिए विल कनेक्ट द फंड, पब्लिक फंड हम कलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक ग्राम पंचायत के, एक गांव के डेवलपमेंट के लिए वी कलेक्ट टैक्स, ठीक है, तो क्यूमुलेटिवली हम अर्बन एंड विलेजेस दोनों से टैक्स कलेक्ट करते हैं एंड विल फोकस मोर ऑन टू द विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि विलेज को हमें अपलिफ्ट करना है। तो हम में से कई लोग देखते होंगे कि कई सारा पैसा हम पूल करते हैं विलेजेस की तरफ, बट वहाँ पे विलेजेस में वो डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता जो कि एक्चुअली वहाँ होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, नोबडी नोज कि कितना पैसा किसी गांव के लिए आया, कितना पैसा उस गांव के खुशहाली के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए खर्च हुआ और कितना पैसा रिमेनिंग आउट हुआ और वो पैसा वापस लौट के कहाँ गया। सो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, एंड जब तक वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है तब तक हम नहीं कह सकते कि दैट गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। ऑलराइट, थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। we have to assign responsibility to particular systems or the particular period, same as the accountability, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करना कि ये पर्टिकुलर काम है। तो फॉर एग्जांपल हम हर चीज के लिए किसी एक ब्यूरोक्रेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि कोई भी काम नहीं हो रहा तो हमने ये बोल दिया सीधा उठा के कि भाई पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहे, या हमने उठा के बोल दिया ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहे। समटाइम्स देयर आर सो मेनी पीपल इन द सिस्टम who should held responsible for their respective duties. So good governance में roles and responsibility का clearly identification is very much important. Fourth is equitable and inclusive, ठीक है। तो equitable मतलब ये सभी के लिए बराबर होना चाहिए and it should be inclusive। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने केवल अर्बन बॉडीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया, उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करके उनको अपलिफ्ट कर दिया एंड देन फिर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भूल गए। इट शुड बी इंक्लूसिव, सारे जेंडर्स इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, सारे डेमोग्राफिक इसमें इंक्लूड होना चाहिए, अर्बन रूरल का एक बेटर मिक्सचर होना चाहिए। सो एक एज अ नेशन, एज अ कंप्लीट नेशन, वी शुड रीच टू द लास्ट माइल सिटीजन। दैट इज द वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस। फिर है हमारा इफेक्टिव होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। एक गुड गवर्नेंस का जो सिस्टम होना चाहिए दैट मस्ट बी इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि वी आर डेवलपिंग सो मेनी एप्लीकेशंस, वी आर डेवलपिंग सो मेनी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और वी आर इम्प्लीमेंटिंग सो मेनी पीपल ऑन द ग्राउंड एंड उसका इफेक्टिवनेस कुछ नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं विथ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसकी तरफ हमें मूव होना चाहिए कि देयर शुड बी लेस पीपल एंड देयर शुड बी मोर वर्क, देयर शुड बी ग्रेटर वर्क, ठीक है। हमारे पास कम रिसोर्सेस में बेटर आउटकम हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। फॉलो द रूल ऑफ लॉ, ये सिटीजन की साइड पे शिफ्ट हो जाता है।
कि जो लॉ बना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको हम कैसे फॉलो करवा सकते हैं, कैसे ये इंश्योर करें कि लोग उसको फॉलो करें. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. It must be also be participatory. So most of you have joined some of the initiative run by mygov.in. तो MyGov जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी भी नई सरकारी संस्था बनती है, कोई भी नया पब्लिक डोमेन में हैपनिंग होती है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि सिटीजन को हम उसमें पार्टिसिपेट करें. जैसे कि इंडियन पोस्टल सर्विस के कुछ साल कंप्लीट हुए थे, तो उन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम के या 2.5 अक्षर लेटर राइटिंग एक कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इन विच पोस्टल सर्विस के कुछ सिल्वर जुबली कंप्लीट होने पर लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके. इन द सिमिलर मैनर जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, वो अपना ऐसे कंपटीशन कराता है. लोगो डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट होते हैं. 150th एनिवर्सरी ऑफ बापू में खूब सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसमें लोग अपने नेशन के बारे में जान सके. Yesterday there was a Kargil quiz जो कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया था. So how we creating a infrastructure या how we creating a system in which citizens are participating in the issues of national importance. That is also a part of good governance. ठीक है. And consciousness oriented मतलब majority की सहमति up to an extent possible. So major of people should agree to one thing up to an extent possible. This is also a part of good governance. कि हम सभी की सहमति से, सभी के कंसाइन से, सभी के अप्रूवल के साथ एक बढ़िया सिस्टम डिफाइन कर सके, डिजाइन कर सके, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, जिससे हम किसी भी टर्म में ये चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में गुड गवर्नेंस है या नहीं है. Shall I proceed further? Is it clear to everyone? Anybody can give some thumbs up. Keshav, shall I proceed further? Hello. Yes, sir, you may proceed further. Okay, fine. So these are the good governance index. Okay. So ये हमारे कुछ good governance के index हैं कि in which domain we can find good governance. All right. किस किस सेगमेंट में हम गुड गवर्नेंस दे सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. आप खुद सोच के देखिए, यू मस्ट थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन कि जो हमने पुराने कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं व्हिच वी हैव सॉ इन प्रीवियस स्लाइड, आर दे रियली इम्प्लीमेंटेड ऑन दीज पर्टिकुलर सेगमेंट्स. हमने एक बात की थी ट्रांसपेरेंसी की. सो इज देयर एनी ट्रांसपेरेंसी कि हम किसानों से, हम फार्मर से कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज कर रहे हैं, उसको किस रेट पे बेच रहे हैं और किस रेट पे कॉर्पोरेट उसका फायदा उठा पा रहे हैं. इज देयर अ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम? इफ देयर इज नॉट, देन वी मस्ट डू समथिंग फॉर द गुड गवर्नेंस, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेगमेंट. सेकेंड इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो खूब सारे जॉब्स जा रहे हैं. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दिस जॉब? हु इज अकाउंटेबल फॉर द लॉस ऑफ दीज पर्टिकुलर जॉब्स? ये हमें देखना पड़ेगा. ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, इज देयर प्रेजेंट इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज? इफ देयर इज नॉट, देन वी मस्ट डू समथिंग फॉर गुड गवर्नेंस इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. Are we going to held responsible teachers कि वो अपनी ड्यूटीज बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं? इफ देयर इज अ इकोसिस्टम जहाँ पे हम ये मॉनिटर कर सकें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे तरीके से अप टू एंड स्टैंडर्ड बच्चों को शिक्षा मिल रही है या बच्चों को एजुकेशन मिल रही है. इज दिस हैपनिंग इन इंडिया? If it is not, then we must do something for good governance and human resource development. Similarly, public health में जहाँ पे हमारे अभी कोविड वैक्सीनेशन लॉन्च हुए हैं, या जहाँ पे अभी जितने भी कोविड से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, पब्लिक हेल्थ में जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस है, क्या वहाँ पे गुड गवर्नेंस के वो कैरेक्टरिस्टिक हैं? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल्स में, ब्रिजेस में, रोड्स में, क्या यहाँ पे हमारे पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है?
क्या इकोनॉमिक गवर्नेंस है, क्या सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं जो कि जेंडर जस्टिस से रिलेटेड स्कीम्स हैं, ट्रांसजेंडर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं, क्या यहाँ पे वो गुड गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक हैं? इफ इट इज नॉट, देन वी मस्ट डू समथिंग। गुड गवर्नेंस एक इतना बड़ा सेगमेंट है, एक इतना बड़ा स्पेयर है कि जहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर डोमेन, आई कैन चैलेंज यू, कोई भी पर्टिकुलर डोमेन इंडिया में आप उठा लीजिए गवर्नेंस का, देयर इज एब्सोल्युटली नो गुड गवर्नेंस। आपको वहाँ पे गुड गवर्नेंस लाने के लिए इतने चांसेस हैं, इतना सारा एक स्पेयर खुला हुआ है जहाँ पे आप गुड गवर्नेंस के मेजर इन जितने भी दिखाए हुए डोमेन्स हैं, इन किसी भी डोमेन में आप क्या कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस को ला सकते हैं। ठीक है, so there is a quote that loser visualize the penalties of failures। जो losers होते हैं वो क्या करते हैं कि वो penalties ही हमेशा देखते हैं कि if I try to do something for let's say human resource development या school education system में मैं एक transformation की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा यार, अपने गांव, एक गांव पकड़ लेते हैं, गांव में 2 स्कूल्स पकड़ लेते हैं और उसको सही करके देखते हैं, बट वो काम करने से पहले क्या देख लेंगे, दे विजुलाइज द पेनल्टीज ऑफ फेलियर्स। तो ये सोचेंगे कि यार यहाँ पे अगर ये नहीं हुआ तो बदनामी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरा टाइम जाएगा। So they always visualize the penalties of failures, but what we should do, we should identify जो successful persons हैं वो क्या देखते हैं, वो reward of success देखते हैं कि अगर मैंने एक स्कूल का एक क्लासरूम भी सही किया ना, तो that means कि there are 30 kids जिनके लिए मैंने कुछ बढ़िया काम किया है या जिनके लिए मैंने गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया है। So you should always visualize the penalty. You should never visualize the penalties of failures. You should always visualize the rewards of success. And वो success के rewards आपको consider करने पड़ेंगे. Then you can able to work on this good governance. So we shall move further. आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को real life example समझने में ज़्यादा interest होगा कि how can we visualize the real life examples of good governance. So one of the example is RTI, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, उसको आप हमारे 8 गुड गवर्नेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर जज करेंगे तो आप पाएंगे कि RTI इज वन ऑफ द गुड रिफॉर्म दैट हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ गुड गवर्नेंस। ऑलराइट, सो RTI जो हमें पावर देता है, सूचना का अधिकार, कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी गवर्नमेंट सिस्टम में, किसी पब्लिक यूटिलिटी में पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग कैसे किया जा रहा है। एक ऑर्डिनरी सिटीजन 10 रुपए खर्च करके कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर गवर्नमेंट इकोसिस्टम। सो इजंट इट अमेजिंग? यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यहाँ पे एफिशिएंसी भी है कि आप मात्र 10 रुपए खर्च करके ये पता लगा सकते हैं दिस ऑफिस जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इट इज मेंट फॉर यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने कितने स्पोर्ट्स क्लब डिजाइन किए, हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया, आप केवल 10 रुपए खर्च के यू कैन गेट टू नो दैट सरगुजा में जो UNB वॉलंटियर पोस्टेड है और उनके थ्रू जो नेहरू युवा केंद्र चल रहा है, वहाँ पे पैसे का क्या क्या यूज हो सकता है विद ओनली 10 रुपीज। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस। सेकेंड, इफ यू वांट टू सी जो हमारा ई-गवर्नेंस सिस्टम है, ई-गवर्नेंस सिस्टम आपने देखा होगा कि हम सारे गवर्नेंस को कोशिश कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके कैसे गवर्नेंस सिस्टम को एम्पावर कर सके, कैसे गवर्नमेंट सिस्टम को एफिशिएंट बना सके। तो जो ई गवर्नेंस सिस्टम है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, जो कि लाइवली आप देख सकते हैं। जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, हमारे में से बहुत सारे लोग कलकत्ता से थे, वाराणसी से थे, वन ऑफ आर्या ज्वाइन फ्रॉम जबलपुर, वो भी एक स्मार्ट सिटी में कंसीडर हुआ है एक शहर। तो स्मार्ट सिटी मिशन इज ऑल्सो अ मिशन ऑफ गुड गवर्नेंस। तो स्मार्ट सिटीज का अगर हम देखें तो वहाँ पे स्मार्ट बिजनेसेस होना चाहिए, स्मार्ट लिविंग होना चाहिए, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट कम्युनिटी, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी, मोबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। खूब सारे सेगमेंट हैं। अगर एक हम इसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट देखें, सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इफ यू सी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमारे पास स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कनेक्टिविटीज, हम कैसे कनेक्शंस निकाल सकते हैं। जबलपुर जहाँ से मैं बिलोंग करता है, वहाँ से वहाँ फ्लाईओवर अभी बन रहा है, तो
तो फ्लाईओवर बनने से जो हमारा 15 to 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो रफली 5 to 6 किलोमीटर्स में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो एक फ्लाईओवर वहां से डिजाइन कर रहे हैं. हाउ वी डिजाइन सच थिंग्स फॉर द ग्रेटर गुड, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. स्मार्ट यूटिलिटी, हम एनर्जी एफिशिएंट सोलर सिस्टम का यूज कैसे कर सकते हैं. तो पार्क्स में आपने देखा होगा, पार्क्स में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं जो दिन के समय चार्ज होती हैं और रात में अपने आप जलने लगती हैं. This is also a part of system which brings good governance in the government infrastructure. So smart utility is also a part of good governance. All right. Smart mobility, कैसे हम transportation के system develop कर सकते हैं, design कर सकते हैं. That is also a part of smart cities mission. And इससे हम smart cities के through good governance को ensure कर सकते हैं कि वाइडर पब्लिक के लिए हम किस तरीके से ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जिसमें उनको एफिशिएंट लगे, रिलायबल लगे, ट्रांसपेरेंट लगे, अकाउंटेबल. सो आई गेस these two example, one is RTI and second one is e-governance. They are the prominent example of good governance in which in these particular segment you can read more about it कि कैसे यहाँ पे. और हमेशा आपको ध्यान में ये रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक, जब भी हम किसी भी सिस्टम की स्टडी करें तो हमें देखना है कि ये जो 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं, these 8 characteristics are present in the good governance system or not. अगर किसी एक सिस्टम में ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं, that means that system is comes under, it fall under the category of good governance, otherwise it is not. Fine, is it clear? Is there any question? फिर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि व्हाट आई हैव डन इन हरियाणा फॉर ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस. इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क टू मी. I guess there is no confusion in it. Shall I proceed further, Smriti? Yes, sir. Please proceed further. Okay, fine. So as Keshav introduced, as Smriti, I guess, introduced about me, that I worked in Haryana for bringing, good governance. So there is a program in which you also, आप में से जितने भी लोग हैं who are super interested, in creating reforms in the government system, I would strongly recommend you all to fill the form of this Chief Minister Good Governance Associate Program. It is the one of the finest fellowship क्योंकि मैंने पूरे इंडिया में देखा है अभी तक का, एंड उसके पोस्ट दैट फेलोशिप भी मैंने कई सारी जगह काम किया, बट दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ, जहाँ पे मैंने गवर्नमेंट सिस्टम को इतना क्लोजली जाना है, समझा है और उसके अकॉर्डिंग काम किया है. So I would suggest every one of you write down this particular term, CMGGA, Chief Minister Good Governance Associate Program. In short, आप CMGGA बस गूगल पे टाइप करेंगे, आपको CMGGA प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा. I was a part of 2018-19 cohort, जो कि मैंने CMGGA में काम किया था. And this CMGGA program gives me hands-on experience on how we can perform and create reformation in the government system. So while I was working in CMGGA system, I was posted in a district in Haryana. The district name was Mahendragarh, और उस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम इंटायर हरियाणा के लिए, हालांकि हमने पूरा सिस्टम डिजाइन किया था. We have designed a system for providing efficient education in the government schools. तो गवर्नमेंट स्कूल्स के क्या हाल है ये आप सभी लोगों से छुपे नहीं है. राइट फ्रॉम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के कैसे हाल है. तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ट्रांसपेरेंसी को लाना, गवर्नमेंट स्कूल में एफिशिएंसी को लाना, ये बहुत ही मेजर चैलेंज है जो हम सभी लोग फेस करते हैं. हाउ वी डील्ड विथ इट, इसके बारे में मैं आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना चाहूँगा कि कैसे हम एक गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं. So we designed a campaign called Saksham Haryana. So Saksham Haryana was a campaign which was introduced to enhance the grade level competency in the government school kids. All right. So जो हमारा grade level competency था, as you can see on the screen,
in 2014 the grade level competency का मतलब ये होता है कि if a school student is in 5th class and 5th class में if we expect कि 5th class में बच्चे को elementary multiplication आना चाहिए, addition आना चाहिए, subtraction आना चाहिए, वो स्पेलिंग्स को रीड एंड राइट कर सके, ये ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी की 5th क्लास के हिसाब से जो एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए वो पर्टिकुलर उस बच्चे में है। पर यूजुअली ये देखा जाता है कि बच्चा जिस ग्रेड में होता है, इवन इन दी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन नॉट रीड और राइट, और बस वो जस्ट पास होके वो फर्दर क्लासेस में मूव करते जाते हैं। तो हाउ वी कैन इंश्योर द ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज कि लेट्स से 6th क्लास में ये 6 कैरेक्टरिस्टिक एक स्टूडेंट में होना चाहिए एंड वो उस स्टूडेंट में हमें मिले, तो ये ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में सक्षम हरियाणा कैंपेन डिजाइन किया गया। जब ये कैंपेन डिजाइन किया गया उसके पहले देखा गया 2014 में देयर वाज ओनली 40% ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी, यानी कि अगर पूरे हरियाणा में 1000 बच्चे हैं तो उसमें 1000 बच्चों में केवल 400 बच्चे ऐसे हैं जो जिस क्लास में हैं उन्हें उस क्लास का नॉलेज है, दे हैव द नॉलेज ऑफ देयर एग्जिस्टिंग क्लास। 2017 में ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी बढ़ के आप देख सकते हैं 3 साल में ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी को केवल 15% बढ़ा पाए with all the efforts, but by implementing by systematic planning we aim that कि 2019 में हम जो ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी है उसको हम 80% कर देंगे। वी विल इंश्योर कि गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सभी 80% ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी रखते हों, वो 80% ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट। और ये हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक गोल निर्धारित किया, ठीक है। एंड देयर इज अ वेरी प्रोफाउंड कोट दैट गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन, ठीक है। आप हमेशा मान लीजिए कि व्हाट इज अ गोल, गोल के डेफिनेशन है द गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। सो एज यू कैन सी कि 3 सालों में हम ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी को केवल 15% बढ़ा पाए, लेकिन उसके बाद हम एक्सेप्शनल राइज देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक ड्रीम देखा कि हम 55% से ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी को नेक्स्ट 2 years में 80% लाएंगे। So this is a dream, and how this dream become a goal with a deadline. We have decided a deadline कि by 2019 we will ensure that there will be a 80% grade level competency in Haryana school kids. So remember that goal is a dream with a deadline. We have a dream and also we have a deadline. How we achieve that particular dream, I'll show you. So there are 15 initiative जिसके अक्रॉस हमने सक्षम हरियाणा मॉड्यूल को डिजाइन किया। हमने ये सोचा कि रिफॉर्म लाने के लिए जो हमारी पूरी टीम थी एंड समग्र भी वाज अ मेजर पार्ट इन इट, तो उन्होंने 4 बेसिक सेगमेंट्स निकाले कि वन इज स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव, कि स्ट्रक्चर में कैसे हम चेंज करके गुड गवर्नेंस को ला सकते हैं। फिर पेडागोजिकल जो इनिशिएटिव्स हैं, कैसे हम स्टडी को और एफिशिएंट और मजबूत बना सकते हैं। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट ड्रिवन इनिशिएटिव। सो डिस्ट्रिक्ट का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाराणसी में जो डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वाराणसी में जो बच्चों की प्रॉब्लम है, या वाराणसी में जो डेमोग्राफिक है, वो शायद इटावा में ना हो, वो शायद गोरखपुर में ना हो, है ना। तो इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट ड्रिवन इनिशिएटिव भी देखें कि डिस्ट्रिक्ट की नीड के हिसाब से हम कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेके सकते हैं। और लास्ट इज इनेबलर्स, हम किन चीज़ों के थ्रू ये चीज़ इंश्योर कराएंगे। और हमने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया, डिसाइड किया कि इस सेगमेंट्स के अंदर में हम लोग रिफॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स में इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी लाना चाहते हैं तो आपको असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि असेसमेंट से ही उनके ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी का पता चलेगा। तो हमने थर्ड पार्टी यहाँ पे लेके आए, क्योंकि गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग करेगा तो देयर विल बी अ चांस ऑफ मिसमैचिंग थिंग्स, और हो सकता है कि वहाँ ट्रांसपेरेंसी ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी गलती छुपाने के लिए हो सकता है कि बोले कि नहीं यार सबको पास कर दो एंड ठीक है इसको मतलब ऐसे ही करने देते हैं। हमने एक थर्ड पार्टी हैदराबाद बेस्ड हमने एक फर्म को लेके आया, ग्रे मैटर्स इंडिया GMI को, एंड हमने उससे असेसमेंट कराया सो दैट वी कैन गेट द ट्रांसपेरेंट रिजल्ट। रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी। हमने ट्रांसपेरेंसी रखा, अकाउंटेबिलिटी रखा। सेकेंड, टेक्नोलॉजी सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किए, हमने ऐप्स बनाए, हमने मॉड्यूल्स बनाए, जिसमें हम ये देख पाते थे कि कितना प्रोग्रेस है, कितना हमने टारगेट अचीव किया है।
स्कूल का कॉन्फ़िगरेशन देखा और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मैं इनकी ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज मुझे केशव ने जैसा बताया, आई जस्ट हैव टू गिव यू एन ओवरव्यू दैट कौन कौन से कंपोनेंट्स पे हम फोकस करके एक गुड गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। फिर पेडागोजिकल इनिशिएटिव्स में हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन पायलट्स किए। हमने क्या किया, जो स्टार टीचर्स थे, वी आइडेंटिफाई सम ऑफ द स्टार टीचर्स इन हरियाणा और हमने उनसे छोटे छोटे वीडियोस बनाए जो अपने लेसन्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और उनके वीडियोस बना के हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट की कि जो रिपोजिटरी थी उसमें हमने सारे बढ़िया वीडियोस का एक कंपाइलेशन तैयार किया, और हरियाणा में कोई भी टीचर अपनी लोकल लैंग्वेज हरियाणवी में वो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकता था और उनको अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर सकता था। तो इजंट इट अ नाइस आइडिया? पीयर टू पीयर लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने टीचर्स के लिए डिजाइन किया। हमने रेमेडियल एजुकेशन का सिस्टम डिसाइड किया कि जहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट एग्जिस्टिंगली क्लास 7th में आ गया और उसको क्लास 6 तक की नॉलेज नहीं है, तो हम उसके लिए कैसे रेमेडियल क्लासेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम पुराना बचा हुआ जो चीज़ है उसको इस पर्टिकुलर क्लास में कवर कर सकते हैं, उसके लिए हमने सिस्टम को डिज़ाइन किया, डिफाइन किया। लर्निंग कोलैटरल, हम किस तरीके से हमने सक्षम रजिस्टर्स बनाए, सक्षम चेकलिस्ट बनाई, जिसमें हम इंश्योर करते थे कि एक पर्टिकुलर लेसन है तो उस लेसन का प्लानिंग कैसे होना चाहिए, लेसन को डिलीवर कैसे करना चाहिए और लेसन के आउटकम्स क्या निकल के आना चाहिए। और एज अ CMGJ, एज अ CM रिप्रेजेंटेटिव, मैंने स्कूल टू स्कूल जाके उसकी मॉनिटरिंग की, एक एक बच्चे का सक्षम रजिस्टर चेक किया, जिससे हमें ये पता चला कि एक्चुअली जो हम चीज़ें ऑन ग्राउंड डिसाइड कर रहे हैं या जो हम एक कमेटी में डिजाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्राउंड तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। आई शो यू अ पिक्चर। ये पिक्चर था जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हॉल में हमने सारे टीचर्स को, सारे क्लस्टर इंचार्ज को हमने बुलाया, सारे हेडमास्टर्स को बुलाया, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्लाइड खुला हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने उनको एक PPT के थ्रू पूरा गाइड किया, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग दिया, उनको बताया कि टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म्स है, टेक्नोलॉजिकल जो इनिशिएटिव्स है वो उनको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। पर्सनली हमने एक एक के ऊपर, हमारे पास कुछ सक्षम यूथ वॉलंटियर्स थे आप ही के जैसे, हमने उनको असाइन किया कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स में जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक थे, और हमने उनके इंश्योर किया कि हर एक टीचर, हर एक हेडमास्टर के ऊपर एक ऐसा सक्षम वॉलंटियर है जो उनको व्हाट्सएप एक्सेस करना सिखाए, जो उन्हें यूट्यूब एक्सेस करना सिखाए, जो उन्हें बताए कि स्कूल की ट्रेनिंग, स्कूल की मॉनिटरिंग, स्कूल के बारे में एफिशिएंट हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं थ्रू दी टेक्नोलॉजी। And this makes happen, that comes true with the power of youth। वहाँ पे भी सक्षम जो यूथ होते थे, यूथ वॉलंटियर्स होते थे जिनको गवर्नमेंट कुछ पे करता था, उन यूथ के थ्रू ही हमने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, उन यूथ के थ्रू ही हमने कैपेसिटी बिल्डिंग कराई। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यूथ कितना ज़्यादा, मतलब कितना एक वाइटल रोल प्ले करता है इफ यू वांट टू ब्रिज द गैप बिटवीन deficiency in existing government infrastructure and bringing the innovation to bridge that deficit of those particular deficiencies who are existingly present in the government infrastructure। so जो teachers थे उनको आता नहीं था मोबाइल चलाना, जो बच्चे थे उनको मोबाइल चलाना आता था लेकिन पढ़ाते नहीं आता था, तो हमने उन दोनों चीज़ों को ब्रिज किया, उन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट किया, एंड फाइनली वी गॉट द रिजल्ट। All right, so there are 3 type of people, some make wonder happen, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो wonders create करते हैं, some watch wonder happen, ठीक है, जो देखते हैं अपने सामने wonders को होता हुआ, देखते हैं कि हमारे सामने क्या कमाल हो गया, and some wonders that what happened, और कुछ लोगों को यही अचंभा होता है कि अरे ये चीज़ कैसे हो गई। तो you have to decide कि आपको वंडर्स, आपको चमत्कार क्रिएट करने वाली कम्युनिटी में होना है, चमत्कार देखने वाली कम्युनिटी में होना है, या खुद चमत्कृत हो जाना है, खुद मेस्मराइज हो जाना है कि यार ये क्या हो गया और कैसे हो गया, एंड वी लेफ्ट आउट, वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी डेवलप द कैपेसिटी, एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट द चैंपियंस ऑफ टुमारो। At the end of our initiative, we find that most of the people are grade level competent। जो third party हमारा assessment हुआ था
उसमें जो सक्षम ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ग्रीन में सक्षम ब्लॉक्स डिजाइन करते हैं। और एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है। बिलीव मी, ये असेसमेंट इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है जितने कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। पूरा फ्लाइंग स्क्वाड बनता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जाते हैं, चेक करते हैं, एंड आफ्टर ऑल आर दीज इनिशिएटिव्स, इतने सारे जो हमारे इनिशिएटिव्स हुए थे, उन इनिशिएटिव्स के बाद when we finally evaluate those particular students, we find that those students are grade level competent। ये एक ऐसा स्कूल है, इतना डिस्टेंट स्कूल है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे नांगल चौधरी एक ब्लॉक है, वहाँ का स्कूल है, एकदम लास्ट माइल सिटीजन, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर खत्म होता है, उस स्कूल्स में इफ वी कैन क्रिएट द चैंपियंस ऑफ टुमारो, आई गेस दिस इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस दैट वन कुड ever imagine। All right, and this is one of the finest experience in my life, that how I create, you know, a transformation system for the school education। So ability is nothing without opportunity। इन सारे बच्चों में ability है, you just give them the opportunity, ठीक है, so that they can rise and shine। So remember this thing, ability is nothing without opportunity and we have to create that opportunity, ठीक है। तो कई लोग होते हैं ना कि जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारो, वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। मेक आयरन हॉट बाय द स्ट्राइकिंग, हथौड़े को इतना मारो कि वो अपने आप गर्म हो जाए, एंड देन फाइनली यू कैन स्ट्राइक, यू कैन शेप व्हाटएवर यू वांट। इज इट फाइन? शैल आई प्रोसीड फर्दर? ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। सो स्मृति, गुड टू गो? यस सर। ओके फाइन। लास्ट अब हमारे पास वी हैव ओनली 15 मिनट्स रिमेनिंग। तो इन 15 मिनट में हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन डिजाइन अ सिस्टम, अ शॉर्ट एक्सरसाइज की बहुत कुछ हमने गुड गवर्नेंस के बारे में देखा, हमने बहुत कुछ समझा। नाउ हाउ वी कैन डिजाइन गुड गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कंसीडर अ सिचुएशन, मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करवाऊंगा और उसमें हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे दैट हाउ वी कैन यू नो रफली एक रफ इंफ्रा हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर कैरेक्टरिस्टिक। सो ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल दिखाने वाला हूँ, दिस प्रिंसिपल कॉल्ड 5W1H। तो ये 5W1H एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप कोई भी सेशन प्लान कर सकते हैं, कोई भी, ये बेसिकली यूज किया जाता है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, बट ये एक अच्छा टूल है जिससे आप ये डिजाइन कर सकते हैं कि गुड गवर्नेंस इंफ्रा को हमें कैसे डिजाइन करना है, ठीक है, कैसे डिसाइड करना है। तो ये 5W1H में हम देखें तो देयर आर 5 Ws, और वो 5 Ws कौन कौन से हैं? देयर आर व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, व्हाई, एंड देयर इज 1H व्हिच इज हाउ, ठीक है। तो कैसे डिजाइन करना है, लेट्स से हम थिंक थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें क्या करना है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है। तो व्हाट में हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक्चुअली क्या करना है। क्या हमें बिल्डिंग्स को ब्यूटीफुल बनाना है? क्या वहाँ पे हमें डोनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करने हैं? क्या हमें मिड डे मील अच्छा बनाना है? या स्कूल का जो कोर इंटीग्रल पार्ट है दैट इज एजुकेशन, कि बच्चे आए और वो ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट होकर जाएं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। सो व्हाट पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप किसी भी इनिशिएटिव को डिजाइन करेंगे तो क्लियरली डिफाइन कि जिस सिस्टम को आप रिफॉर्म करना चाहते हैं उस सिस्टम में आप कैसे, किस चीज को टारगेट करना चाहते हैं। आपने पब्लिक हेल्थ पकड़ लिया, लेकिन पब्लिक हेल्थ में क्या क्या आप ऑर्थोपेडिक्स को यूज करना चाहते हैं, क्या आप मेडिसिन को यूज करना चाहते हैं, या क्या आप डॉक्टर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, या आप मोर्टेलिटी रेट को कम करना चाहते हैं। आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू डिफाइन दैट इन व्हाट सेगमेंट यू आर पुटिंग योर एफर्ट, यू विल बी पुटिंग योर एफर्ट। तो व्हाट पार्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, आपको व्हाट पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सेकेंड इज वेयर। अगर आपने व्हाट डिसाइड कर लिया कि लेट्स से चलो मुझे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में फोकस करना है स्कूल रेमेडियल प्रोग्राम पे या स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम पे कि ग्रेड लेवल सभी कॉम्पिटेंट हो, ऑल राइट, देन आई विल ऑल्सो हैव टू डिसाइड कि हमें ये कहाँ करना है। क्या मुझे ये एक स्कूल में करना है, क्या मुझे ये एक विलेज में करना है, क्या मुझे ये एक ब्लॉक में करना है, या मुझे ये एंटायर हरियाणा में करना है। तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम हम करना चाहते हैं ये हम कहाँ करना चाहते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड आर इनिशिएटिव्स कि हमारे डिजाइन का स्केल कितना होगा, कितने लोग लगेंगे, कितने लोगों को हमें उसमें पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। थर्ड,
is when. As I told you, that goal is a dream with a deadline. डेडलाइन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहते हैं, आपने ये बोला कि भाई मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि टीचर्स का अटेंडेंस हो, सेकेंड इज कि बच्चे भी टाइम से स्कूल आए, थर्ड इज कि उन्हें बुक्स टाइमली डिलीवर हो जाए. तो टाइमलाइन हमें डिसाइड करना पड़ेगा. हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बाय मिड अक्टूबर मुझे क्या करना है, बाय मिड अक्टूबर मुझे अटेंडेंस सिस्टम को सही करना है. या फॉर एग्जांपल प्री असेसमेंट के 1 महीने पहले तक मुझे कोर्स कंप्लीट करके देना है. तो इस टाइप की आपको टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस टाइमलाइन में आप वो काम परफॉर्म करना चाहते हैं, व्हाट इज योर डेडलाइन. देन फोर्थ इज हु, आप किसके साथ काम करेंगे. आपने एक डिजाइन कर लिया कि आपको स्कूल एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, बट हाउ इट इज पॉसिबल. क्या आप एक एक स्कूल में जाके पढ़ाएंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. क्या आप एक एक स्कूल को देखेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. आपको वहां पे जो गुड गवर्नेंस का एक कंपोनेंट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी और उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा. अगर एक टीचर को हमने अकाउंटेबल बना दिया कि वो अपनी ड्यूटी डिसाइड करे, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से स्टूडेंट को डिलीवर करे, तो हमें लेस फोकस ऑन द इंडिविजुअल कैंडिडेट लगाना पड़ेगा और हम वाइडर ऑडियंस पे फोकस कर सकेंगे. सो हु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, एंड दैट इज योर टीम. अगर 20-30 यूथ फोर्स मिलके किसी एक इनिशिएटिव में काम करना चाहती है, तो हु विथ whom you will do your initiative. तो 20-30 यूथ फोर्स इज द टारगेट पीपल जिनके साथ आपको इनिशिएटिव डिजाइन करना है. फिर आपको बेनिफिशियरीज के बारे में सोचना पड़ेगा, तो फिर आपको अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचना पड़ेगा. देन फिफ्थ इज हाउ. सो हाउ यू विल डू इट. यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस आपका आएगा कि भाई अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने या आपको पेडागोजिकल इंप्रूवमेंट्स लाने, आपको पढ़ाई लिखाई को बेहतर बनाना पड़े, तो हाउ यू विल इम्प्रूव दैट. विल यू इम्प्रूव दैट बाय मोटिवेशन, विल यू इम्प्रूव दैट बाय मॉनिटरिंग, विल यू इम्प्रूव दैट बाय टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इंटरवेंशंस, या बाय ऑल ऑफ देम. ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ यू विल डू दैट. एंड रिमेंबर, इसको मैंने ग्रीन से इसलिए कर रखा है बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. हम सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं लेकिन हाउ पार्ट हम डिसाइड नहीं कर पाते. हाउ पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीजों को कैसे एक्चुअली परफॉर्म करेंगे. एंड लास्ट इज व्हाई वी आर डूइंग दैट. तो व्हाई वाला पार्ट आपकी पूरी प्रोसेस के इन बिटवीन आता है, क्योंकि व्हाई वाला पार्ट विल गिव यू अ मोटिवेशन, it will give you a purpose that why you are doing that, why you have joined this 20-30 youth force. आपको ये सोचना चाहिए why you have joined this particular session, जहाँ पे मैं इतना सारा कुछ बोल रहा हूँ और इतना सारा कुछ सुन रहे हैं. तो why part is very much important because it will give you a sense of identity. आपको बताएगा कि आप इतनी एनर्जी क्यों पुट अप कर रहे हैं, आप इतना काम क्यों कर रहे हैं. एंड हाउ वाले पार्ट के बाद भी why वाला पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यू शुड डाउट योर ओन इनिशिएटिव्स. आपको ये एक थर्ड पार्टी एसेसर की तरह आपको ये डाउट करना चाहिए कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसी तरीके से क्यों कर रहा हूँ. वाई आई एम डूइंग दिस इन अ पर्टिकुलर मैनर. क्या ये वेल थिंक थ्रू है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है, क्या इसका एवेल्युएशन, इसका फीडबैक मुझे मिल रहा है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल डिजाइन माई फर्दर इनिशिएटिव्स. ऑलराइट. So this 5W1H rule is very much important. अगर आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं उसके लिए भी, और अगर आप कोई इवेंट या कोई इनिशिएटिव डिजाइन करते हैं तो भी उसके लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी चीज को मिस नहीं करेंगे. सो ओपन योर नोटबुक, आई विल गिव यू अ शॉर्ट असाइनमेंट. सोचिए कि कोविड वैक्सीनेशन लॉन्च हो गया है. ऑलराइट. स्मृति, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes sir, you are. ओके. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपने कुछ नहीं भी सुना हो, प्रेजेंटेशन देखा होगा, तो भी आप देख सकते हैं. थैंक्स फॉर द थम्स अप. 20-30 यूथ फोर्स. आप लोगों को करना ये है कि सपोज कीजिए, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर कोविड वैक्सीनेशन इज रिलीज. आई एम नॉट सेइंग इट इज इन्वेंटेड, इट्स ऑलरेडी रिलीज्ड. ऑलराइट. एंड वी वांट टू इंश्योर दैट दिस कोविड वैक्सीनेशन शुड नॉट limit only till Amitabh Bachchan or only till our CM Saab who found COVID positive yesterday only, शिवराज सिंह चौहान जी, CM ऑफ मध्य प्रदेश. तो हमें ये करना है कि जो कोविड वैक्सीनेशन रिलीज हुआ है वो केवल मेदांता में पड़े हुए
अमीर मरीज को ना मिले, वो केवल लीलावती में पड़े हुए अमिताभ बच्चन जी को ना मिले, वो मतलब नॉट ओनली लिमिटेड टू देम बट इट शुड ऑल्सो रीच टू द लास्ट माइल सिटीजन, जो लास्ट ब्लॉक है वाराणसी का, जो लास्ट विलेज है कैलकाटा का, जो डिस्टेंस लोकेशन है जबलपुर की, वहां तक भी पहुंचे। ठीक है, so you have to तो what part is clearly defined in it कि कोविड वैक्सीनेशन की रीच को हमें लास्ट माइल सिटीजन तक पहुंचाना है। आप ये सब हेडिंग्स लिख दीजिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ एंड व्हाई। इस पे आप सेगमेंट्स बना लीजिए और 1 और 2 शॉर्ट पॉइंटर्स लिख के डिजाइन कीजिए ये एक्टिविटीज, दैट हाउ यू विल इंश्योर दैट अगर आप एक ब्यूरोक्रेट होते या अगर आप एक हेल्थ मिनिस्टर होते, so what are the key points which you will give to your bureaucrat to ensure that good governance must implement in COVID vaccine delivery? Did you understand what I said? Marlene, did you get my point? Yes, sir. Yes. Okay, write it down and I will check. I'll request Keshav to collect all the responses from all the participants. Okay, you have 2 or 3 और ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट होता है। फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड ना, दैट इज द ब्रिलियंट आइडिया। आप हमेशा मान के चलिए, कोई भी नया उड़ता उड़ता थॉट, लॉजिकल स्केलेटन को आप भूल जाइए। तो सबसे पहले आपकी गट इंस्टिंक्ट से जो थॉट आता है ना, ये काम करने के लिए मुझे ये अप्रोच फॉलो करनी है, दैट इज द बेस्ट थॉट। बस उसको हम फिर बाद में लॉजिक्स के बेसिस में डिजाइन थिंकिंग से हम उसको परिष्कृत करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में उड़ता उड़ता आ रहा है इन 5 सेगमेंट में, 5W1H सेगमेंट में, वो आप जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, so that I get to know कि इस सेशन का कितना इफेक्ट क्रिएट हुआ। I'll get some good responses from you all guys. लिखिए जल्दी जल्दी, कैसे हम ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं कि ये जो कोविड वैक्सीन है वो लास्ट माइल सिटीजन तक पहुंचे। And I especially emphasize on the part 5th, how part is very much important, how you will define a system in which हम ये डिसाइड कर सकें कि वो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक थे गुड गवर्नेंस के, वो सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं। So I've meanwhile जब तक आप सभी लोग लिख रहे हैं, anybody have any idea how वाला part they can share with me? कैसे इंश्योर करेंगे कि वैक्सीन पहुंचे लास्ट माइल सिटीजन तक? एनी आइडिया? कोई भी उड़ता उड़ता थॉट कि हम ड्रोन से डिलीवरी कर देंगे, क्या हम क्या कर देंगे, हम इसको मतलब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उड़ता उड़ता थॉट है आपके दिमाग में आप बोलिए, डू नॉट हेजिटेट। गाइस फ्रॉम बनारस, आप लोग मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, बताइए। Am I audible? Yes, you are audible. Okay, so one thing we can do is we can contact the person. I mean, there is this, there are wards, right, in every district. So we can contact the person who is heading the ward, and through them we can, we can know the number of vaccines required in that area, and our priority will be the old age citizens and the children first, and anyone who is suffering from any disease like diabetes, etc. So we can contact that person and take the data, and then according with his help only we can supply the vaccine through him. Good. So who part is very much clear in it? How part is also very much clear in it? Yes, please. I have an idea. First of all, we need to distribute the distribution in 2 categories. First, it will be most affected areas, and the other will be the population density of each area, according to which the vaccine which we are getting should be sent in that proportion. Then it should be first sent to hospitals, because they only have the apparatus and all these things required to store the medicines and stuff.
for delivering, we can collaborate with Swiggy, Zomato, and all these Indian Post services, and all these services which are already so prevalent, and these are the only services who are taking all the precautions of PPE kit, taking care of themselves, and delivering food and items that need to be delivered already. So if we work with them, this would be, easy, and we won't need any other people to learn how to take care of themselves while delivering the vaccines and all. If something, if it's, if the vaccine can be taken by people themselves, if it's like that, otherwise we need to contact the local clinics and all. Okay, okay. That's nice, Arya. You must think about that how we will ensure that there will be no black marketing of the vaccine. Okay. If we try to distribute with multiple channels, there will be a chance कि वहाँ पे black marketing होने लगे, storage होने लगे. So how we will tackle that particular situation? We should also consider this into our designing process. Otherwise, it is a very nice idea. So, but if we produce it in a larger scale, maybe the black market is not an issue. The issue is getting people treated right now. Exactly. But So the thing we are is, already. we could not deliver it to everybody, no. So Yes, sir. we will get it in the limited edition, and as previous candidate tell that we should decide priorities, that we should. So because the mortality rate is very much high in infants and old age people, so how we will ensure that availability of vaccine must ensure for those people first, and the later for the later people we can ensure subsequent delivery in the later stages. Yes, sir. So that's why I mentioned that we should first check most affected areas, and then according to the population density and these categories. Exactly. How part is important. How you will do it. Will you do Yes, it with technological driven intervention? Will you do that with the population demographic which we have in our statistical department? How you will pitch your idea to local government? Think in that particular direction. I guess you have a good idea to implement. Right? So who part is also very much important. By whom? Who are your teams? And who are the stakeholders for implementing this particular idea. So rest of the candidates can also learn from this particular example that considering all these 5W1H, we can define and design a very good, idea. Irrespective of any domain, we can create any solution for any given. Anybody else wants to share their idea? Yeah, sir, I want to share. Yes, please speak a bit louder. Yeah, sir, I'm clear. Yeah, you are clear now. Yes, sir, I have a point regarding who that we can contact to CMOs and ASHA workers, and because I think that vaccine is such that can be given by professionals only. Nobody Exactly. in grassroots levels, no one can take by themselves. Exactly. So for Anganwadi peoples, we can contact. Similarly, like the polio, this drops and hepatitis ones were dealt, and we can contact schools for children. As the schools, they provide like vaccinations. When I was in school, we were used to inform before only that we have to pay such money and we will be vaccinated for hepatitis and other this diseases. So this is my and how I will do. I will make this low cost vaccine, and again I will contact Anganwadi people so that everyone should get, because the concern in India is that grassroots levels are marginalized. So we should reach there first. And yeah, one thing more, we can contact through this Aru Setu app, Okay. that who is affected and this vaccine can be reached more faster or more efficiently to the people. We can get the details and data through that. So amazing, Parul, amazing. yeah.
So this is also very much important that you should know the field functionaries, as Parul told, that Anganwadi workers, they are the ones who have the access to, last mile citizens. So as Arya before, Arya ने ये चीज बताया था कि will in urban areas it is very easy to distribute the vaccines and all, but in the distance places like very far rural areas, how we will ensure that vaccine should be approachable to them also. So Anganwadi workers are the right ones जिसको हमें फोकस करना चाहिए था. So very well good input in this particular segment. Anybody else? So see, this is the part. As team of 20-30 youth force in India, like आर्या ने अगर हाउ वाला पार्ट सोचा है, आपने हु वाला पार्ट सोचा है, सारे लोग individual people can think through on a particular segment and collective intelligence को मिलाते, collective brilliance को मिलाते, if we can design and define a particular solution, then definitely our solution will be logically sound, परफेक्टली इम्प्लीमेंटेड, और उससे हम सोल्यूशन ड्रिवन जो हमारी अप्रोच रहेगी तो हम परफेक्टली गेन कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीम वर्क. आई गेस 2030 यूथ फोर्स, केशव, you have brought so many amazing people on a single platform, and definitely they'll help you out to take forward the initiatives of 2030 youth force. Anybody else wants to share? I think Anjuman have something to say. Yeah, please go ahead. So actually, in government hospital, it should be like COVID-19 का जो वैक्सीन है वहाँ होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स. सो बेटर रहता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही हो ज्यादा, ताकि अमीर लोग भी ले सके एंड गरीब भी ले सके, लाइक वो अफोर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना. एंड देयर शुड बी अ सेंसस, लाइक विलेजेस में जा जाकर देखना है कि हर घर में कितना मतलब कितने कोविड-19 पेशेंट्स है या क्या है. सो उसी हिसाब से उस विलेज में ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा वैक्सीन होने चाहिए. ग्रेट. सो आई गेस अंजुम ने वेयर वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से कवर किया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी हमें इंश्योर करना है. कई बार लैक ऑफ एक्सेस के कारण लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है या लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगा. सो वेयर पार्ट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी इंश्योर करें, क्योंकि एक जनरल टेंडेंसी है कि गाँव में या जो अनपढ़ लोग हैं या जो इलिटरेट लोग हैं, तो जो मार्जिनलाइज हमारी कम्युनिटीज़ हैं, दे ओनली बिलीव कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है हमें, तो हमें सीधे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाना है या सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है. तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. वेयर पार्ट आई गेस अंजुम ने जो कवर किया, इट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस. एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? So instead of having these vaccines in government hospital, I think we should have camps instead, because in government hospitals there are already so many COVID patients, and that area is really very very dangerous to go, and people are not comfortable in going in that area. So instead of having the vaccines there, we should have some other area for general people who are not affected already. Exactly, Arya. Actually, what I am doing right now, it sounds a bit diplomatic. I am encouraging people, to think through a situation. We are not here, as I told you ना, कि ये जो situation है इसको हमें एकदम perfectly, as you have your own idea in your mind, you can take it forward, है ना? And Anjum has something to think about that. She thought about where we can provide the delivery of those particular vaccines. So I am encouraging individual people to think through the individual components. And at last, as you are mentioning, it is very much important that I guess Arya comes to that particular 6th point, that why doubt everything which you have thought. So if Anjum thought कि हमें institutional delivery रखना है, then at the 6th point you must also doubt yourself कि is it good करंट सिचुएशन में, जब कोविड के इतने सारे पेशेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, या लोगों को अपने ही घर में सेफ रहने के लिए कहा जा रहा है. सो इज इट गुड
to bring people to the hospitals, or we should ensure the home delivery of the vaccine with the supervision of clinical practice या clinical expertise रखने वाले एक सुपरवाइजर के साथ हम वैक्सीन की होम डिलीवरीज कैसे, या वैक्सीन का ट्रीटमेंट, वैक्सीन का जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वैक्सीन, हाउ वी कैन इंश्योर दोस पर्टिकुलर सेगमेंट. So individual people have their individual ideas. I guess you should reframe it, and I'll request all of you take this as your short assignment, because ये मैं किसी की भी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. हम कलेक्टिव क्रिएटिविटी में बाद में आएंगे, बट इंडिविजुअल जो आपके प्लान्स हैं, सभी ने किसी ना किसी एक कंपोनेंट के बारे में सोचा होगा. जस्ट डिफाइन एंड डिजाइन योर सॉल्यूशन. ठीक है, अभी एस केशव टोल्ड मी कि बहुत ज़्यादा हमें हाई फाई नहीं जाना है. बेसिक मैंने आपको एक अप्रोच बताई. लेटर ऑन वी कैन हैव अ सेशन ऑन डिजाइन थिंकिंग where we actually design the things. आज तो just एक introductory session था. So आप सभी अपना individual एक slide बनाइएगा, and through Keshav I'll request all of you to mail me all your solutions so we can think through it, and we can work further on your individual ideas. And later on 20-30 youth posts can create a collective idea and submit it to like Ministry of Health and Family Welfare, because they are looking forward. Yeah, this sounds good. Like actually we are coming up and drafting something coming up from summer school. That's really good. Just one quick point. I think Parul rightly mentioned, we can reactive our polio agents, because if you have seen that we successfully came out of polio, although it was a long journey, but now we are experienced enough, right? So I think we can again push in, and if we get the vaccine, it will be easy for India to to get out of this pandemic. So yes, I think Anganwadi and polio agents would be like one of the major agents who can help us. Yeah. Great. So I'll just take 5 minutes to wind up my session. Okay. So finally, जो भी हमने good governance का देखा, how we can be a part of good governance. पहला internally motivated, and then skill. हमारे पास कौन सी skills होनी चाहिए. तो हमारी ये जो Gen Y है, इस Gen Y को जो हमारी generation है, उसको वो कैसी है, वो already they are optimistic, they are ambitious, they are resourceful, abundance of resource हमारे पास है. On a single click we can get to know कि हार्वर्ड में क्या चल रहा है, स्टैनफोर्ड में क्या चल रहा है. They are passionate, they are collaborative. As you can see, most of the people from the different segments of the countries come together on a single platform designed by 20-30 youth force. They are very loyal, they are entrepreneurial, they are having entrepreneurial mindset, they are very good communicators. कि मतलब इसके पहले तो मैंने जितने भी देखे थे, when I was a kid I was very hesitant in saying and expressing my ideas to others, but यहाँ पे जल्दी लोग सीखते भी हैं, समझते भी हैं, बोलते हैं, and they are very confident. So how we should proceed if we want to do something for good governance? So it is very much important that we should aspire to inspire before you expire. ये मेरा एक बहुत ही prominent idea है. You should aspire to inspire before you expire. मरने से पहले कुछ बढ़िया काम करना चाहिए, और वो करने के लिए आपको इंटरनली मोटिवेट कैसे होना चाहिए. यू शुड वर्क फॉर योर लव, नॉट फॉर मनी, बिकॉज इन सोशल डेवलपमेंट यू विल नॉट फाइंड a huge chunk of money. I saw the profile picture of Keshav जहाँ पे वो जो हमारे वॉशरूम स्लीपर्स हैं उनको पहन के खड़ा हुआ है और एक झोला टांगा हुआ है. This is the exactly what we thought when we actually start working on the communities, because we should be a part of community. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम एक BMW से एक डिस्टेंस विलेज में जाएंगे and then वहाँ पे अपना 3-piece सूट लेके अपना मैकबुक खोल के उनसे आइडियाज गैदर करेंगे. This won't work. ठीक है, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए. We should work for love for our community. We should work for love for our nation and not for money. Money is a byproduct. Later on आप बहुत तरीके से मतलब डेवलपमेंट में अपने ब्रिलियंस का यूज करके मनी मेकिंग कर सकते हो, बट ऑन फील्ड
agar you want to actually impart the good governance, you should work for love, not for the money. You should attract for the opportunities, not for the status. आपको opportunities देखना पड़ेगा. Like I am here in Sarguja. Previously I was in हरियाणा. तो अभी हरियाणा में मैंने एकदम टिपिकल जाट और ऐसे कम्युनिटीज के साथ काम किया जाता है. वो बहुत ही इंडर्ड होते हैं, बहुत ही रिलक्टेंट होते हैं आइडियाज के लिए, ऐसा माना जाता है. बट अपेरेंटली इट हैपेंस, बट एक्चुअली इट इज नॉट. एंड फिर मैंने यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ ज्वाइन किया है. तो आई वर्क विद द ट्राइबल कम्युनिटीज. लेटर एकदम ट्राइबल एरियाज में जाना पड़ता है जहाँ लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है. तो वहाँ पे मैं अपने स्टेटस या अपने यूनाइटेड नेशंस के पट्टे के साथ नहीं जाता. I always walk with them. I always talk with them like a local people, not as a tourist, but as a people who want to understand their problems. So you should always attract to the opportunities, not to the status. You should look for the challenges, not for the tenure. क्योंकि गुड गवर्नेंस का आप कोई भी एक प्रोजेक्ट करेंगे, वंस वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. अगर आपने एजुकेशन में कुछ किया, देन यू कैन मूव ऑन टू हेल्थ, देन यू कैन मूव ऑन टू सिटीजन सर्विस डिलीवरी, देन यू कैन मूव ऑन टू डिजिटल इनिशिएटिव्स, देन यू कैन मूव ऑन टू सिटीजन ग्रीवियंस रेड्रेसल, एंड देन ट्राइबल पीपल वेलफेयर. तो इस टाइप के आपको अपने सेगमेंट्स बदलना पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि टेन्योर है भाई मैंने जावा पे कोडिंग सीख लिया, अब जावा पे ही कोडिंग करना है, लेक्चर से मैंने मोटिवेशन देख लिया तो मुझे सेम लेक्चर ही हर जगह बनाना है. यू शुड लुक फॉर द चैलेंजेस. आपको आगे जाके कैसे चैलेंजेस को इम्पार्ट करना है, नए नए डेमोग्राफिक्स पे काम करना है, अप नॉर्थ से लेकर डाउन साउथ तक जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना है. एंड यू शुड डिमांड दैट वर्क मे बी एंगेजिंग एंड इट शुड बी हैविंग फन. अगर आप मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, एक जैसा काम नहीं होना चाहिए, एक जैसी अप्रोच नहीं होना चाहिए. You should innovate. You should inspire others to work with you without any money or without any monetary benefit. So as collective intelligence से हम कैसे एक better future shape कर सकते हैं, this should are key focus areas. So ये चीजें आप याद रखिएगा that you should work for love, not for money. Opportunities के लिए attract रहना है, challenges को देखना है. You should make this a part of fun, है ना. That's why I am engaging with young people like you, because ऑफिस में बैठ के बहुत सारा काम करना is a monotonous job. हमें इस जॉब का नेचर चेंज करना पड़ेगा, हमें फील्ड पे जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, and that's how we can bring good governance in the system. So collaboration, you can know, I need not to explain it. Creativity is very much important. Creativity आपको explore करना पड़ेगा, experiment करना पड़ेगा, like I did today with you all 5W1H के साथ. और एक्सप्लोर कीजिए. कुछ लोगों की डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होता है. आपको एक गुड मिक्स बनाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं तो आपको लोगों के इमोशंस भी समझने पड़ेंगे. इफ यू आर गुड एट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग तो आपको लॉजिकल स्केलेटन भी बढ़िया बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, गाँव जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ग्राम सभा कैसे होती है, लोगों की नीड्स क्या है, लोग रहते कैसे हैं. यू शुड बी ओपन टू न्यू एंड डिफरेंट. जो अप्रोच आपने मुंबई में किया है या जो अप्रोच आप कलकत्ता में करते हैं वो अप्रोच शायद आप एमपी में ना कर पाए. ठीक है, आप जो काम एक्सेल पे बनाते हैं हो सकता है वो आपको पेन पेपर अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा. तो यू शुड बी वेरी ओपन, है ना. एंड यू शुड बिल्ड डाइवर्सिटी. आपको अलग अलग सारे लोगों से मिलना पड़ेगा. कुछ लोग बहुत इनकरेजिंग होंगे, कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग होंगे, कुछ लोग आपको इतना डिस्करेज करेंगे कि आप सोचेंगे कि यार गलत फील्ड में आ गए, ये फील्ड हमारे लिए नहीं थी. एंड यू शुड टेक चैलेंजेस एंड चांसेस. तो जो आपकी लाइफ में रिस्क आएंगे उन रिस्क को आपको लेना पड़ेगा, उन रिस्क को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन रिस्क के साथ आपको काम करना पड़ेगा. सो वी शैल ट्राई, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. आई गेस ये एक नया फिनोमेना आपके सामने खुला है. खूब सारे सेगमेंट्स है जहाँ पे आप अपनी अप्रोच को देख सकते हैं, लिख सकते हैं. यू कैन शेयर द आइडियाज विद मी. आई हैव पीपल इन नीति आयोग, आई हैव पीपल इन गवर्नमेंट, आई एम इन यूनाइटेड नेशंस. तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ हैं. इफ यू हैव अ डिसेंट and if you have a well equipped idea which can create something new, which can create a scope for the good governance, to share with me. I'm not a plagiarist कि मैं आपका आइडिया चुरा के किसी को चिपका दूंगा. I'll directly connect you with the relevant people.
up to best extent possible. Keshav knows me really very well. और हम यही कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा डोमेन बनाएं जहाँ पे हम एक्चुअली रिफॉर्म ला सकें. ठीक है, तो रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये 3 सेगमेंट याद रखिए. रिफॉर्म दैट यू थिंक इन योर माइंड, perform which you do with best of your abilities, and that's how you transform the entire system. तो हमें ये 3 सेगमेंट याद रखने हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. सबसे पहले सोचिए कि क्या हो सकता है, करिए जो कि करना जरूरी है. रिफॉर्म के बाद परफॉर्म, एंड देन फाइनली यू कैन ट्रांसफॉर्म द entire इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन ट्रांसफॉर्म द इंटायर इकोसिस्टम जहाँ पे हम प्रेजेंटली रह रहे हैं और जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है. दिस इज फाइनली माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स for sharing your assignments and for sharing your ideas. I am very much open up to the new ideas. And as a poetic thought, I want to end my session with these 4 lines कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए. हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि है जो कुछ भी अपने पास लिए सरकार बैठे हैं, whatever we have in our minds, whatever we have with our capabilities, we are ready to offer it to the needy people. We are ready to offer it to our nation or for the better world. जो कुछ भी अपने पास है लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहिए ले जाइए सरे बाजार बैठे हैं, और मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम. लेकिन यू ऑल शुड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. आप अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में खूब तरक्की करें, खूब आपको ऊंचाइयां मिले. यू शुड रीच टू द हाइट्स ऑफ योर सक्सेस, बट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द अदर मार्जिनलाइज्ड पीपल, अदर पीपल हु आर योर फेलो सिटीजन्स who shared this globe with you. है जो कुछ भी अपने पास लिए सरकार बैठे हैं, जो चाहिए ले जाइए सरे बाजार बैठे हैं, और मनाओ जश्न मंजिल पर पहुंच जाने का तुम. लेकिन खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं, खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं. Thanks all of you. My session ends up here. Thank you so much, Keshav. Hello. Thank you, Himanshu sir. That was really inspiring, and we got to get a lot of insights into good governance and beyond that. I do hope everyone will remember it, reflect on it. And guys, please do complete the assignment and submit it as soon as possible. So here, I would like to adjourn the morning session. We'll take a break. Go have your lunch, take your afternoon nap, and do reassemble at 4 o'clock in the evening. We have another session of creative writing workshop. I hope you'll enjoy it. Hello, may I have some words with participants? How participants? Yes, Himanshu. We have Anjuman from Kashmir. She joined us late. Anjuman is here. Then we have Divya also. We have Smriti from Jharkhand. Great. Yeah, so Anjuman, you can meet and greet. Hello, sir. Yeah, hi everyone. So, did you like the session? Yeah, I like, but I like it, but I joined late. Okay. So anybody of you, I just want to have a feedback, because doubt on yourself is very much important. So you can share your feedback with me. So, Yes, Arya. so looking at your presentation and understanding, what I realized was it's we can actually work and help the government, because everyone is really scared that there's such a huge system that we need to go through. Then there'll be so much of work to be done. Maybe our ideas are there, but to implement them, the path is too long. Looking at your presentation, what I learned is that we can, actually contribute with not so much of hassle, and we can inspire others also to help the government. I'm very much convinced that you will do it for sure. All the best. Anybody else wants to share their feedback with me? Sir, I got the insights that there are so many policies or there is so much work going on, but the basic part required is the implementation and how the implementation is to be done.
I really got inspired on the thing that you were asking for the feedback, because you are more working on the why part. Because if it hit me like that, why it hit me like that, right? Yeah. So that is really inspiring, and that created an insight in me also, that yes, I should reflect on every activity, or we should reflect on whatever we are thinking. Like for example, I got an insight throughout the session that if you were not targeting, you were asking us that why only Amitabh Bachchan should get this, or why only some people who can afford the same. So I got that there are celebrities, if I'm following them on Instagram or somewhere else, that they are fundraising for many of the things, right, for the poor and all. And when we are talking about the marginalized group, as Anjuman rightly said, that there are people who are not getting the things, who cannot afford actually. So while asking them to club in the hospitals again and again so that we can afford them, or we can make them affordable by them, it is better to ask these celebrities by having the point of a celebrity, that we don't want to focus over there. Like you must be rightly following that there's a huge fight and there is a debate on nepotism as well. So the grounds we shook of them, no. So if you are challenging them with something they can be imbibing through it, so it would be better if you are if you ask the celebrities to fundraise, and then they should be accountable to government. What I see to the whole session, what the crux and just what I got is the thing, we should collaboratively work as a teamwork, all right? Like you have the resources you rightly shared with us, you have some insights, you greatly inspired us. If we have something, we are reflecting on it. If Arya had something, she pondered upon. The thing with us, the generation, which I think, it is only my perception, it might be wrong, the thing with me is your last two lines of that poetry, that if I reach somewhere, I am in my ego or in my so-called self-respect, I do not want somebody to get in club of me, because he or she will also get that fame, right? I don't want to share that name with them. So this thing to be, shaken off, and then we can proceed further, because as a team, you are stronger together, right? So when you are stronger together, you can do wonders, because even the PM cannot alone do anything. He cannot stop Corona, which he was so inspired and motivated of, because the team wasn't, I am not saying the team wasn't working properly. I am saying because we were not having the same frequency as our PM wanted from us. So if we have something, we should really look upon it. We should really reflect upon it. So this is what I got. Great. Thanks, Arlene. Many things. So, this side, Parul. Yeah, hi, Parul. So actually, I want to ask that you were discussing about your this Saksham Haryana program. So I just want to ask that this is a big challenge as far I concern. When I meet the teachers of government school, many of my relatives are also working as a government teacher. So when I Your voice is breaking, Parul. I think she had a network issue, Himanshu. Okay. So, Keshav, take individual questions from the participants. Okay, I'll try to address them individually. Sure, I will share with you. Okay. I guess you all are running out of time, and you must have some subsequent sessions. So I don't want to take much of your time. Nice to meet you all, and thanks again. Thanks, Keshav, for giving me this opportunity to connect with such brilliant minds. Okay, you can individually connect me whenever you want, and wish you all the best. Thank you so much, Himanshu. It was really nice. So yeah, guys, time to say goodbye. Thank you so much. Himanshu, I will get back to you. Okay. Take care, guys. See you guys in the evening. Yeah. Bye bye.